ये देखो ये जो केस इस तरह से बस तो ये तो बस पे सामान गिरा पड़ा मिल गया गया फिर खाया साइमल्टेनियस मैं सरोद बजाता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे साथ सरोद नहीं है एक्चुअली कि मंगलम गरुड़ express my sincere gratitude to Honorable Chancellor for inviting me here and giving me an opportunity to speak few words on this wonderful occasion. The first of all, I want to congratulate the Om Sterling Global University for hosting 38th AIU Northwest Zone Youth Festival. I was told that nearly 1,000 students are participating from the state of Rajasthan, Haryana, UP, representing almost 25 universities. I am sure the students will be returning after getting enriched experience about the cultural diversity of India. As we all know, India is not only the most populous and most diverse country, but culturally it is very, very vibrant. If you recollect the number of the languages and dialects spoken on this planet, there are nearly 5,000 languages and dialects spoken throughout the world. Out of that, 1,600 languages and dialects are spoken in India alone. So you can very well imagine how much India is the diverse country. And the theme of your cultural youth festival is the harmony in diversity. It means we are so diverse. Our traditions, our rituals, our customs, our languages, our dialects, our attires, our foods are so diverse and dissimilar to each other. So we have to understand the diversity, we have to respect the diversity, and we have to promote the cultural diversity of India by creating an inclusive society that is a harmony. I am sure that the students across many universities gathered here, they showcased their beautiful talents by taking part in various events. I was told that nearly 27 events are organized here by clubbing them in the 5 different groups, and the very, very young minds, talented students, they are showcasing their talents, whether it is a debate, declamation, general knowledge quiz, painting, one-act play, and other photography, mehendis, and so many clay modeling and other events. So it's a very nice occasion that you should get enriched with experience and learning by others, and I am sure that you will be going back with cherished memories. You might have developed so many connections here by developing so many friendships with the students from other states. So please try to understand their cultures, respect their culture, and promote the diversity in the harmony. That is a message out from this event, and we should get the strong message and also inculcate the feeling, unity feelings in our mind, so that our respect toward the fellow citizens in India become more strengthened with the times, and you will understand that yes, the India is a wonderful country, and each and every inch of the land of India is very, very dear to us. These kinds of feelings, these kinds of values, if you take out of these events, I am sure that it's going to be very, very useful, and you can achieve all kinds of successes in your life. The dear students, only my message to all of you is that please concentrate on your health, stay away from the vices like drinks and drugs, etc. Unfortunately, India is in the grip of drug abuse problems, and you will be surprised to know that as on today, nearly 8 crore youth in India are taking drugs, and this is causing huge economic loss because the productivity become big zero
if we are tempted with the drugs, and if the young minds are in the grip of drugs, you can't take any work from them. They will become total liability, not only on the family, not only on the society, but as a nation whole. It will not only cause physical and mental loss, but also huge economic loss. So please remain away from all kinds of vices, including drugs. Your parents have done a lot of hard work to send you here. So if any negative ideas come to your mind, just keep the picture of your parents before your eyes and think that for what values and education and academic endeavors our parents have sent you here. So keep those things in view and then do hard work, a lot of hard work, enjoy the student life, enjoy humors. No need to take any kind of stress while unnecessarily worrying about the future. Don't worry about the past and future. Stay in present, concentrate on your study, do hard work, whichever area you like. It is not only academics, but you can see the talents represented by the students in the various kinds of the events. So if core area event attracts you, concentrate on that, work hard and success will be yours, because there is no royal road to success. You have to burn midnight oil to achieve successes in life. With this, I don't want to prolong my speech further. I want to congratulate to the university for hosting this event, and my congratulations also goes to all the participants who have gathered here to take part in the various events, and also to those who are going to win the prizes, and all others who are not going to win the prizes but can take pride by representing their university, because you are the real ambassadors of your university by spreading the messages of and values of your respective university. So with these words, once again, congratulations to the university and best wishes to all the participants. Thank you very much. माननीय वाइस चांसलर सर, प्रो वाइस चांसलर सर, और हमारी के लिए और बच्चों को, युवाओं को इंस्पायर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं कहूँगा, सबसे पहले मैं ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर पुनीत गोयल और मैडम पूनम गोयल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके और इस इवेंट को यहाँ पे होस्ट किया है। ऐसे इवेंट होना यूनिवर्सिटी में हमेशा यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, पूरे स्टेट के, राज्य के लिए बड़ी गर्व की बात होती है। जब बाहर से इतनी सारे विश्वविद्यालय से, लगभग 25 विश्वविद्यालय से यहाँ 1000 से ज़्यादा छात्र छात्राएँ भाग ले रहे हैं तरह तरह के इवेंट्स में, तो इस तरह के इवेंट यहाँ पे होस्ट करना, उसके लिए कड़ी मेहनत करना और सफलतापूर्वक होस्ट करना, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे सब के लिए गर्व का विषय है, न केवल यहाँ के यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट इस विश्वविद्यालय में पहली बार हो रहा है। और जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है, उन्होंने इनको एलोकेट किया है होस्ट बनने के लिए, तो ये दर्शाता है कि इन्होंने कितनी मेहनत की है और इंटर यूनिवर्सिटी जो का एसोसिएशन है उनका इस यूनिवर्सिटी पे कितना विश्वास है कि ये सफलतापूर्वक इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। तो ये बड़े गर्व की बात है और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे उत्साह जो मैंने छात्र छात्राओं का देखा, फैकल्टी मेंबर्स का देखा, चांसलर साहब से लेके सब कर्मचारियों का देखा, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आके। सर, एक्चुअली इस इवेंट को लेने के लिए, होस्ट करने के लिए कई यूनिवर्सिटी को काफ़ी साल लग जाते हैं, पर हमारी ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी को सिर्फ 5 सालों के अंदर ये इवेंट मिल चुका है और होप तो आगे भी मिलता रहेगा। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, देखिए, ये दर्शाता है कि ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी कितनी तेज़ी से नई ऊंचाइयों को छू रही है। इस तरह के इवेंट मिलना ये विश्वास दर्शाता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि ये बड़े ही मेहनत करके बड़े अच्छे से सफल आयोजन कर सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी इस तरह के अलग अलग इवेंट यूनिवर्सिटी को मिलते रहेंगे और अपनी सफलता की ये नई कहानियाँ गढ़ते रहेंगे और ये हमारे लिए गर्व का विषय बनते रहेंगे। जी सर, एक आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा। यूथ फेस्टिवल, तकरीबन 25 से 30 यूनिवर्सिटी के 1500 से 2000 स्टूडेंट्स ने इस यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है, तो यूथ के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे तरफ से सब जो जितने युवा हैं, नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, उनके लिए एक ही संदेश रहेगा कि आपको ड्रग्स से दूर रहना है और बड़ों का सम्मान करना है, माता पिता को सम्मान करना है, अपनी जो हमारी जो कल्चर है उसको भूलना नहीं है, हमारी रूट्स को भूलना नहीं है, हमारे संस्कारों का सम्मान करना है, आदर करना है और कठिन मेहनत करके
आपका जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य को, जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कठिन मेहनत करना है, लेकिन ड्रग्स और ड्रिंक्स इन सबसे दूर रहना है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है और हमेशा हंसते हंसाते रहना है और अपनी स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करना है। एक बार जितने भी हमारे माननीय अधिकारी खड़े हैं, आप सभी से एक अनुरोध है कि हमारी यूनिवर्सिटी में कोई भी गेस्ट आता है तो पूरा ग्रुप वो बोलता है OSG रॉक्स। तो एक बार सर आप भी बोलेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। एक साथ बोलेंगे सब लोग? हाँ जी सर। ठीक है। देखिए, OSG rocks, OSG rocks, OSG rocks। मेरी यानी आरजे सौरभ की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार में और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पुनीत गोयल जी, चांसलर ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। सर, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पिछले 2 से 3 दिनों में एक फेस्ट चल रहा है जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ वेस्ट जोन यूथ फेस्टिवल हो रहा है। तो सर हमारा चैनल द येलो माइक के जितने भी दर्शक हैं, आप उन्हें बताइए कि AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी क्या होता है और ये यूथ फेस्टिवल क्यों इतना खास है। जी सर। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एपेक्स बॉडी है। इसका जो मेन ऑपरेशन रहता है यूनिवर्सिटीज़ की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ और बहुत सारी जैसे क्विज, लिटरेरी, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए मॉनिटरिंग रहती है। जैसे UGC हमारी अप्रूवल्स, एफिलेशंस को देखती है, AIU के ये अदर फंक्शंस हैं। इसके साथ साथ AIU जो इंटरनेशनली बच्चा हमारे यहाँ से इंटरनेशनली जाता है या इंटरनेशनल से हमारे यहाँ आता है, उन दोनों तरह के स्टूडेंट्स की इक्वलेंसी का काम भी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी करती है। जो ये फेस्ट हो रहा है, ये 5 दिन का फेस्ट है और इसको 38 साल से हो रहा है। 38वां फंक्शन हमारे यहाँ हो रहा है। इसमें 3 स्टेट पार्टिसिपेट करेंगी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तकरीबन इसमें हमारे 3 स्टेट्स के अंदर जो नॉर्थ वेस्ट यूथ फेस्ट जो जोन है, इसमें तकरीबन 160 के करीब यूनिवर्सिटीज़ है, जिनमें से हमारे यहाँ 26 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1000 से ज़्यादा बच्चा एक्टिवली यहाँ डे नाइट स्टे करता है और 5 दिन का ये प्रोग्राम है। ओपनिंग के समय हमारे ऑनरेबल गवर्नर चीफ गेस्ट रहे हैं और आज 3rd डे चल रहा है। आज हमारे यहाँ मेघालय से रिटायर्ड DGP डॉक्टर LR बिश्नोई जी आए हुए हैं, जो कि आज की चीफ गेस्ट हैं और उन्होंने बड़े अच्छे मैसेज दिए हैं बच्चों को कि आप एडिक्शन से दूर रहें, पेरेंट्स की सेवा करें। ये जो इस तरह के मैसेज है, इस तरह के जो लोगों के आने से जो बच्चों में एक मैसेज पॉजिटिविटी जाती है, वो सारा बच्चों के लिए आगे भविष्य में बहुत काम करती है। तो सर जैसे आपने बताया कि आज के चीफ गेस्ट जो हैं, जो फॉर्मर DGP LR बिश्नोई जी थे, तो उन्होंने पूरा इवेंट देखा। तो इवेंट देखने के बाद उन्होंने आपको क्या फीडबैक दिया इवेंट के बारे में? उन्होंने अभी तक जो 3 इवेंट देखे हैं, तीनों इवेंट के बाद वो मतलब उसको आए थे 1 घंटे के लिए, परंतु उनको 3 साढ़े 3 घंटे हो गए हैं और वो मुझे लगता है पूरा दिन सारे इवेंट देख के जाने की कोशिश करेंगे कि उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया है कि जैसे उन्होंने ग्रुप सॉन्ग सुना तो एक के बाद उनको वो अच्छा लगता गया। 1 एक्ट प्ले देखा, वो भी एक से एक बार बढ़ के लगा और वो वैसे भी इतना लंबा चौड़ा उनका अनुभव है। उन्होंने काफ़ी सारी सोसाइटी में बुराइयां देखी हैं, तो 1 एक्ट प्ले के द्वारा जो हमारे स्टूडेंट्स ने इस तरह की जो बुराइयों को डिस्प्ले किया है, उससे बड़े ही प्रभावित हुए हैं और वो बड़े खुश हैं। जी
सर आपने जैसे बताया कि 1000 से प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी में स्टे कर रहे हैं, तो सर उनके खाने की, रहने की, और जो आपने बताया कि जजेस जो हैं वो भी देश के अलग अलग कोने से आए हैं, तो उनकी सर फैसिलिटी किस तरह से यूनिवर्सिटी उन्हें प्रोवाइड कर रही है? हमने देखिए जितने 1000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उनमें 600 से ज़्यादा गर्ल्स हैं और 400 साढ़े 400 बॉयज़ हैं। सारे स्टूडेंट्स का हमने अंदर अरेंजमेंट किया हुआ है, कोई बाहर स्टूडेंट नहीं जाता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ, चाय सब कुछ कंप्लीटली यूनिवर्सिटी की तरफ से होस्टिंग होती है। 21 जजेज आए हैं जो सारे के सारे साउथ से हैं या महाराष्ट्र से हैं या असम से, रांची से, सब जगह से आए हैं। उन सब के लिए रहने का, इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी जाती है उनके साथ एक टीम मैनेजर होता है, 1 से 2, एक मेल एक फीमेल। 70-80 के करीब जो लोग आए हैं उन सब के लिए भी सारा अरेंजमेंट हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, उनका पूरा खाने का, और किसी तरह की कोई भी शिकायत नहीं है। सब लोग बड़े खुश और बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। जी सर, ये जो यूथ फेस्टिवल हो रहा है इससे खास करके स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट मिलने वाला है? स्टूडेंट्स को इसके अंदर इतना बड़ा बेनिफिट है, एक सिर्फ पढ़ाई करने से आज बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसके लिए कल्चरल एक्टिविटीज़ की भी ज़रूरत रहती है, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की भी ज़रूरत रहती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के तहत 20 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक 4 दिन का हमारा चेस कंपटीशन भी AIU की अंडर ही होने जा रहा है। तो इसकी जो फ़ायदे की बात, आप तीसरी बात क्या है कि जब ये हमारे यहाँ जो फंक्शन है ये अब जोनल लेवल पे है, इसके बाद हमारा ये इवेंट जो है ना नेशनल लेवल पे जाएगा। जो बच्चा नेशनल लेवल पे एक बार प्रेजेंट करेगा, लाइफ लॉन्ग उसके रिज्यूम में लिखा जाता है कि इन्होंने नेशनल प्रेजेंट किया हुआ है। और उसके साथ साथ इसके बहुत सारे पॉइंट्स आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह के बच्चों को दी जाती है। तो देखिए दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर पुनीत गोयल जी, चांसलर ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी यूथ फेस्टिवल की जितनी भी वीडियोस हैं आपको इस पेज पे मिलती रहेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। सबके सब तुम लोगों ने पूरा एकदम बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा थोड़े ही टाइम में बहुत ज़्यादा काम किया। तुम भी पूरी मस्ती में गा रहे हाँ, ये पूरा एक्सट्रीम अभी तो बदल गया था। चलो फोटो कराते हैं। सर पुलिस डिपार्टमेंट से वाले के DGP समझते हो, हेड ऑफ द स्टेट। आज आपने सर की स्पीच तो मिस कर दी। आप बेटे इधर आओ, उसको बोलिए मैम आ जाओ।